and if you're building a product, you will have to serve different languages. Although English is very common, but even if you're doing it in English, you are not able to target a larger chunk of audience in India. That's another problem here. Especially EdTech को लेके जो लोग बोल रहे हैं, बायजूस को लेके, अनअकैडमी को लेके कि ये लोग पैसा कम कमाते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं. ऐसा नहीं है. आप अगर यूएस बेस्ड कंपनीज को देखो, कोर्सेरा है, यूडेमी है, तो यूडेमी का 2021 में जो लॉस मेंशन्ड है विकिपीडिया पेज पे वो $78 मिलियन हैं. कोर्सेरा के $117 मिलियन लॉसेस हैं. मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबिलिटी करना सबसे मुश्किल है. मंथ ऑन मंथ आप लॉसेस करते होगे, वो होते ही हैं बिजनेस में. अब मैं कस्टमर से भी अननेसेसरी चार्ज करने लग जाऊंगा अपने ब्रांड का यूज करके, तो वो लॉन्ग टर्म में वर्क कभी नहीं करेगा. राइट, कस्टमर्स नो इन सम टाइम. आप चीट करके कोई स्कीम निकाल लो, ये निकाल लो, लेकिन कस्टमर्स को थोड़े दिनों में पता चल जाता है. Well, today's podcast is about how to start a business without a funding. It's also known as bootstrap model of the business. So let's learn more about the bootstrap model and its challenges with the sir himself. Hi sir, how are you? I'm good. How are you, Sam? I'm good. Sir, today podcast is about how to start a business without funding. But before we start that, I want to ask you, how is it possible to make a successful business in an Indian market? See, if you want to build a business, whether it is Indian market or outside India market, the first thing should be you should be a problem solver. आपको एक problem solve करनी है, which is going to help the people. Okay. So that should be your first thing. You should not begin with कि इसमें कितना पैसा है, and you apart from problem solving, you should be very passionate about solving that problem. You probably, if you're part of that problem, or if you've seen problem around you and you were like कि ये solve होना ही चाहिए problem. So if you begin that way, there are higher chances of success. अब इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट में चैलेंजेस तो हैं. इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, राइट, यू नो कितना नीचे है पूरे वर्ल्ड में. हम जीडीपी की बात करते हैं कि वी आर स्टिल वेरी वेरी लो. आई मीन वी आर इवन बिलो बांग्लादेश, राइट. आई मीन इफ यू लुक एट द रीसेंट नंबर्स. तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप यूट्यूब कर रहे हैं, आप वेबसाइट कर रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास ट्रैफिक बहुत आ जाए, लेकिन आपका एड रेवेन्यू ब्लॉग से या फिर यूट्यूब से या कहीं कुछ भी आप कर रहे हैं जो इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत कम हो, क्योंकि लोगों का पेइंग पावर भी कम है और लोग जो व्यू करते हैं ऐड से भी उतना रेवेन्यू नहीं आता है. So it's definitely much more challenging than if we compare markets like US, China and other markets where people have more paying capabilities and per capita income is higher, especially the apart from US, European based countries, right? So challenges are definitely there. But in any country where you have high per capita income or low per capita income, if you are solving problem of the people and you have built a product which is helping people, तो पैसा तो आ जाएगा. मतलब अगर लोगों का पर कैपिटा इनकम कम है तो आपको रिसोर्सेज भी थोड़े आसानी से मिल जाते हैं. मतलब आपको लेबर इज़ वेरी चीप. आपको इंटर्न्स और लोग भी आसानी से मिल जाते हैं. जैसे हम कंटेंट राइटिंग का करते हैं, तो हम कंटेंट राइटिंग पे जो भी पे करते हैं, वी गेट इजीली पीपल हु आर नॉट चार्जिंग टू मच एंड वी गेट द क्वालिटी कंटेंट रिटन विच इज़ बीइंग consumed by people across the world and it is written in India. Even if you look at service based company examples in India, what they are doing is कि इंडिया में जो कम कॉस्ट पे लोग इजीली अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके दे आर सर्विंग दी वेस्टर्न कंट्रीज. तो दिस इज़ एन एडवांटेज. अगर आप इस टाइप के कुछ सिनेरियो में हैं कि आप इंडिया के ह्यूमन पावर को, ह्यूमन लेबर को यूज़ करके, ह्यूमन्स को यूज़ करके, इफ़ यू आर एबल टू सर्व टू डेवलप कंट्रीज, दैट वुड बी एन आइडियल बिजनेस टू बी इन. Right. Especially like in India also we see there are so many states, like culture and language change at every single step. And it's very very tough for a business to thrive in all over India. Just in a state they can thrive, but in a overall India it's very tough to create their presence. Yeah, that's another challenge. Yeah, very well said by you. The languages are different, exactly. And if you're building a product, you will have to serve different languages. Although English is very common, but even if you're doing it in English, you are not able to target a larger chunk of audience in India. That's another problem here. So sir, coming back to our basic question about this podcast, is it actually possible to start a business without funding? See, we started without funding and I love all the businesses which start without funding, although I have nothing against the funded businesses. Yeah. And if you really want to grow fast, if you really want to grow big in an industry, you need funding. If not now, maybe at a later stage you would need funding. एंड इंडिया में जिस तरह से लोग फंडेड बिजनेसेस को बोल रहे हैं आजकल, मुझे वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है. ऐसा नहीं है सारे फंडेड बिजनेस खराब हैं, और जिन लोगों ने स्पेशली एडटेक को लेके जो लोग बोल रहे हैं, बायजूस को लेके, अनअकैडमी को लेके कि ये लोग पैसा कम कमाते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं है. आप अगर यूएस बेस्ड कंपनीज को देखो, कोर्सेरा है, यूडेमी है, वो लोग आई थिंक यूडेमी 2010 से स्टार्ट हुआ था, कोर्सेरा 2012 से स्टार्ट हुआ था. मैं उन लोगों के विकीपीडिया पेज देख रहा था, तो यूडेमी का 2021 में जो लॉस मेंशन्ड है विकीपीडिया पेज पे वो $78 मिलियन हैं.
एंड Coursera के $117 million लॉसेस हैं मतलब That's 2023 में. That's Yeah, huge. that's very And they're huge. also edtech, right? Right. But I don't know why there is so much negativity around the Indian edtech company. I understand कि कुछ sales tactics के issues थे and all that. वो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये फंडेड कंपनी है इसलिए इन लोगों ने पैसा उड़ा दिया, पैसा Right. बर्न कर दिया. वो तो बाहर भी होता है मतलब. तो बट आई पर्सनली लाइक दी बूट स्ट्रैप्ड कंपनी. आई लव देयर स्टोरीज क्योंकि बूट स्ट्रैप कंपनी जो बनाता है उसके एक अलग ही चैलेंजेस होते हैं. मतलब इट्स लाइक सर्वाइवल इशू. आपको Right. हर महीने देखना है कि यार मेरा जितना पैसा आ रहा है, जितना मेरा पैसा खर्च हो रहा है, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. Exactly. या और मेरे पास कितना पैसा मेरे रिजर्व्स में है. सडनली आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं तो आपको देखना है यार मैं कितने दिनों तक इस लॉसेस में सर्वाइव कर पाऊंगा. फंडेड में क्या है कि आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, Right. राइट. एंड आप एक इन्वेस्टर को प्लान पिच कर चुके हो. Right. आप पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हो. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फाउंडर्स जिनकी कंपनीज फंडेड हैं. तो मैं जब उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ यार कि तुम्हारे एज ए फाउंडर टीम मैनेज करने में क्या चैलेंजेस आते हैं. तो मुझे तो पर्सनली बहुत सारे चैलेंज लगते हैं. वो लगते हैं हमारे लिए इतने चैलेंज नहीं है. मतलब हमारा क्या होता है कि हमारे पास बजट होते हैं, हम पूरी साल का डिसाइड कर लेते हैं कि Right. अकाउंट मार्केटिंग में कितना बजट खर्च करना है और इस वाली चीज़ में कितना खर्च करना है. एंड व्हेन आई लिसन टू देम मुझे लगता है यार ये बिल तो पॉसिबल ही नहीं है. हमारा तो सर्वाइवल का इशू रहता है. हमें तो हर महीने लगता है कि यार इतना पैसा आ रहा है, इतना खर्च हो रहा है, इसको कैसे मैनेज करना है. और वी टेक डिसीजंस वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी क्विकली. समटाइम्स वी विल हैव टू चेंज द डिसीजंस ऑल्सो. हमारा ऐसा प्लानिंग से नहीं चलता है. Right. तो ये एक चैलेंज है बेसिकली. एक डिफरेंस है एक बूट स्ट्रैप्ड कंपनी में वर्सेस एक फंडेड कंपनी में. फंडेड कंपनी में आपने प्लान शेयर कर दिया, फिर आपने टीम को भी प्लान बता दिया, नंबर्स अचीव करने हैं सबको मिलके वो, और उस नंबर्स के पीछे आप रन करते रहते हो. बूट स्ट्रैप में आप डेली आपके चैलेंजेस होते हैं. आप डेली इंजॉय, थोड़ा चैलेंजेस अगर आप इंजॉय करते हो तो आपको मजा भी आता है. मतलब तो वो चैलेंजेस सॉल्व करते करते आप ग्रो कर जाते हो. मतलब Right. हमारे टाइम पे ऐसा था कि हमने 1 लाख रुपए महीने का हम इनकम करते थे, 1-1.5 लाख रुपए महीने का, जब मैंने फुल टाइम स्टार्ट करा था. तो उसमें चैलेंजेस ये थे कि 1-1.5 लाख रुपए महीने में 25-30 हज़ार रुपये किराया जाना है, 3-4 लोगों की इंटर्नशिप जानी है, प्लस मैंने भी जॉब छोड़ दिया, मुझे अपने फैमिली के खर्चे भी निकालने. Right. तो वहाँ से हमारे चैलेंजेस बिगिन हुए थे. अभी वो 1.5 लाख से फिर 50 लाख हो गया. फिर हमें लगा कि इससे कैसे मैनेज करना है. अब हमारी सैलरी इतनी हो गई है, रेंट इतना हो गया है. आज हम जिस स्टेज पे बैठे हैं आज भी वही फाइट है, आज भी वही सर्वाइवल है कि इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतना खर्चा है, अब इसको कैसे मैनेज करना है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे और हमारे रिजर्व्स हैं वो कंज्यूम ना हो. मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबिलिटी करना सबसे मुश्किल है. वो कई बार होता भी नहीं है इवन इफ़ यू आर ए बूट स्ट्रैप्ड कंपनी. लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल हो देन यू आर फाइन. बेसिकली मंथ ऑन मंथ आप लॉसेस करते होगे, वो होते ही हैं बिजनेस में. Right. ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर मंथ, भले ही आप कितने ही अच्छे से चैलेंजेस को रिजॉल्व कर रहे हो, 2-3 महीने लगातार कई बार ऐसे आ जाते हैं, कई बार 1 महीने ऐसा आ जाता है कि आपके लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं. लेकिन आपको वो फिर से चैलेंज सॉल्व करना है. Like if you have to buy an asset into the company, then again you have to think about it. I Right. can actually personally relate with it because when I first started with MBA working in a bootstrap company, so we were 3 people only. So just to get another resource, another intern, we have to think for like 3 months and get that resources. So in bootstrap, it's very tough to increase your resources. That is a very big challenge. And you can't plan. I mean, because No. you are customer funded, right? आप Right. कस्टमर से पैसा ले रहे हो, वही आपका रेवेन्यू है. और वो कस्टमर्स का जो फंडिंग है वो कई बार सीजनल होता है कि प्लेसमेंट्स आ रहे हैं तो बच्चों ने कोर्सेज ज़्यादा ले लिए, Right. प्लेसमेंट ख़त्म हो गए, जब इंडस्ट्री नीचे चली गई, हायरिंग नहीं हो रही तो लोगों ने कोर्सेज खरीदने कम कर दिए, या कई बार Depends. इंडस्ट्री नहीं हायरिंग कर रही तो लोगों को और चिंता हो गया, उन्होंने कोर्सेज और ज़्यादा खरीदने स्टार्ट कर दिए. तो वो थोड़ा चैलेंजिंग तो रहता है और वो चैलेंजेस सॉल्व करने में मज़ा आता है. मतलब मुझे तो अच्छा लगता है पर्सनली. That's very right, sir. So from that only I want to ask, like we hear these terms businessman and entrepreneur very simultaneously. So what is the key difference between both of them? So a businessman is all about a person who is looking at the profit and losses, basically, who is Okay. looking at the numbers कि मेरा कहाँ से profit हो रहा है, कहाँ से loss हो रहा है. Okay. Entrepreneurship is all about solving problems. Okay. And Like we discussed. right, and earlier. apart from this you will have to generate revenue also, right? You will have to survive also. So I think a lot of businesses begin with an entrepreneurship idea, that they begin with a problem solving, then they start generating revenue, and slowly they turn into a business. I mean, the person, the founder turn into a businessman. And I think you should not be a complete businessman also. Even if you've grown to a certain level, you should keep thinking, like personally I still keep thinking about the engineer's problems, and I still
थिंक कि अब हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास रेवेन्यू है, हम टेक कम्युनिटी का अगला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. Right. सो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होता है, वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ग्रोथ देता है. बिजनेस में भी शॉर्ट टर्म में होता है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा भी नहीं आप प्योर एंटरप्रेन्योर बन जाओ. आपको अल्टीमेटली खर्चे, लोगों को अपनी कंपनी में भी जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको भी ग्रोथ देना है, आपको सारे बिल्स भी पे करने हैं. तो इट हैज, यू नीड टू मेक अ राइट बैलेंस. Right. Like if we talk about a Kirana store, it can come under a businessman category, and like Zomato or these leaders can come under the problem-solving entrepreneur category. राइट. So, sir, like we talked, ki we have to have a product to start a business. We have to solve a problem. We have to identify that gap, right? So, once that is identified, what will be our next step? Like how to move forward from that point? सो अगर मैं अपने बिजनेस जर्नी का बताऊँ तो मेरा तो ऐसा था कि मुझे एक प्रॉब्लम दिखा कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है. Right. और मैं ऑलरेडी जॉब करता था, तो मेरे लिए रेवेन्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. लेकिन अगर आप एक स्टार्टिंग के बिजनेसमैन हो और आप अगर फुल टाइम कर रहे हो और आपका कोई इतना बड़ा साइड इनकम नहीं है, जैसे मेरा सैलरी आ रहा था, तो यू शुड लुक एट दी रेवेन्यू फ्रॉम द डे वन ओनली ऑल्सो. अदरवाइज आप कितने दिनों तक सर्वाइव करोगे. तो हमारे लिए, मेरे लिए क्या था कि मैं बहुत टाइम तक पार्ट टाइम कर रहा था, तो मैं एक भी पैसा नहीं कमा रहा था इससे, गीक्सवरी से. और वो फ्री में चल रहा था. एक मूवमेंट ऐसा था कि मैं अपनी पॉकेट से पे कर रहा था सर्वर के चार्जेस. लेकिन आइडियली मैंने जितना करा है वो 5-5.5 साल मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर लिया. मतलब आज मेरे से कोई बोले कि तुम बिना पैसे के इतने साल तक काम कर लो या कुछ कर लो बिजनेस में, तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि हमारे लिए खर्चे भी बढ़ गए हमारी कंपनी के. लेकिन अगर आप एक बिजनेस को बिगिन कर रहे हो, तो आइडियली आपको डे वन से थोड़ा तो सोचना चाहिए कि मैं इससे पैसा कैसे कमाऊँ, जो मैंने नहीं सोचा बहुत लंबे टाइम तक. अब मुझे नहीं पता मैंने जो किया वो सही था या गलत था, लेकिन यू नीड टू, अभी मुझे बहुत सोचना पड़ता है. मतलब वी नीड टू, वट एवर डिसीजन वी मेक, वी नीड टू कंसीडर रेवेन्यू ऑल्सो एज अ बिग फैक्टर. कि अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अपनी, बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ की टीम है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि वट एवर आई एम डूइंग इट डजंट कॉजेज टू मच लॉसेज फॉर द कंपनी, राइट. तो एक टाइम के बाद तो आपको करना ही है. आप जब तक उसे अवॉइड कर सकते हो आप अवॉइड कर लो. अगर आपकी साइड इनकम कोई और भी है, लेकिन वो आपको अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा ही. फाइनेंसेस तो मैनेज करने पड़ेंगे आपको. So, sir, like from there only in business, this term we hear technically cash burning a lot. Like a lot of businessmen says that we have to avoid it and also what this term exactly means. देखो कैश बर्निंग तो कई बार ज़रूरी भी होता है कंपनी में. अगर आपको, आई मीन टाटा जैसे कंपनी भी अभी IPL में ऐड करते हैं, सो दे आर लाइक वेरी ओल्ड कंपनी, लेकिन टाटा न्यू का और इन सबका कितना ऐड आता है IPL में. तो ऐसा नहीं है कि कैश बर्निंग इज़ कम्प्लीटली बैड, यू शुड अवॉइड इट. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने कोई नया प्रोडक्ट करा है, तो यू नीड टू मेक पीपल अवेयर कि आप लोगों को बता रहे हो कि यार हमारा एक प्रोडक्ट है, यू शुड गिव इट अ ट्राई. एंड वंस यू रीच सर्टेन पीपल, जो भी आपका टारगेट था, उन लोगों ने ट्राई कर लिया है और वो लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वापस नहीं आ रहे हैं, तो आप शायद फर्दर कैश बर्न मत करो अननेसेसरी. मतलब क्योंकि आपने लोगों तक रीच कर लिया, लोगों में प्रोडक्ट पहुंच गया, लेकिन वो यूज़ करके या तो अपने प्रोडक्ट को दोबारा से देखो क्या चीज़ें गलती हैं, उसे री इन्वेंट करो, फिर आप दोबारा कैश बर्न करो. लेकिन आप उसी प्रोडक्ट पे बार बार कैश बर्न करे जा रहे हो, तो वो गलती है. फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल का एग्जांपल लो, तो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं. गूगल ग्लासेस आया था और एक टाइम पे वो गूगल ग्लासेस पे बहुत पैसा बर्न कर रहे थे. एंड वंस दे रियलाइज कि यार ये नहीं चल रहा है, दे किल्ड इट बेसिकली. एंड उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया. सेल्फ ड्राइविंग कार्स आई थी उनकी, बहुत पैसा बर्न करा था उन्होंने उस पर. तो यू नीड टू, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, तो सबको पता है कि गीक्सवरीज पे आर्टिकल्स होते हैं. हमने जब कोर्सेज स्टार्ट करे तो वी डिड सम एडवर्टाइजिंग. हमने थोड़ी एडवर्टाइजिंग करी जिससे लोगों को पता चल जाए कि गीक्सवरीज पे कोर्सेज भी आ गए हैं. एक बार हमने थोड़ी एडवर्टाइजिंग करी, हमने स्टार्टिंग में कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी ऑनबोर्ड करा था गीक्सवरीज में एड्स बनवाने के लिए. उसके बाद अब हम बिल्कुल नहीं करते हैं. अब हमें पता है कि लोगों को पता है गीक्सवरीज पे कोर्सेज हैं, और अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो अपने आप बिकेंगे. हमें वो इतना ज़्यादा कैश बर्न करने की जरूरत नहीं है. सो वी डोंट बर्न अ लॉट ऑफ कैश ऑन दी कोर्स एडवर्टाइजमेंट. हाँ, अब हम थोड़ा एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो जॉब पोर्टल का करते हैं, क्योंकि लोग गीक्सवरीज को ऐसे नहीं जानते कि ये एक कंपनी है जिससे जॉब मिल जाएगी. तो दिस इज सम न्यू प्रोडक्ट, स्टडी प्लेटफॉर्म की तरह जानते हैं. अब लोग कोर्सेज की तरह भी जानने लग गए हैं. सो नाउ वी प्रमोट जॉब पोर्टल. और हमें अगर लगने लगेगा कि जॉब पोर्टल पे HRs आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनके जॉब लग रहे हैं और हम उसे उन्हें सर्व कर पा रहे हैं, देन वील स्टॉप एडवर्टाइजिंग इवन दिस ऑल्सो. हमें उसमें ज़रूरत नहीं है. और हम अब तो बिल्कुल भी पुराने प्रोडक्ट्स पे तो बिल्कुल कैश बर्न नहीं करते हैं. हमारा एक टाइम पे ये था कि हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बहुत पैसा देते थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देते थे. फिर हमें लगा यार कि उस पैसे को अच्छा तो ये कि आप प्रॉब्लम ऑफ द डे में सीधे यूज़र को दे दो, जो आपके प्रोडक्ट पे आ रहा है और वो डेली कंज्यूम डेली स्पेंड टाइम कर रहा है. तो हमने POTD करा और मुझे पर्सनली लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा स्पेंड था कंपनी का वर्सेस
giving the same amount to an influencer, to a creator, or to an ad agency. We were directly able to give money to the people. And लोग स्टूडेंट्स के लिए वो एक एस्पिरेशन बन गया कि उनको, हमारा चलो पैसा खर्च हो रहा था लेकिन उतना हम एडवर्टाइजिंग में करते, अब स्टूडेंट्स वो टी शर्ट पहन के लिंक्डइन पे शेयर करने लग गए, उनके लिए अपने कॉलेज में दिखाने लग गए कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो गई। तो हमें शायद उससे ज़्यादा रिटर्न्स आए वर्सेस अगर हम सेम अमाउंट किसी और को देते, तो प्रमोशनल वगैरह में किसी बीच में खर्च करते। सो इट्स लाइक इट इज नेसेसरी टू द पॉइंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि व्हेन यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट। एंड दिस इज सिंपल फॉर्मूला। आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करिए, टाटा का न्यू थोड़ा नया है, न्यू बेसिकली उस पर आप उसको आप वो बता रहे हैं कि यार हमारा एक प्रोडक्ट है, एक ऐप है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। एंड वंस दे सी कि यार लोग बार बार अपने आप आ रहे हैं, लोग रीयूज कर रहे हैं, और मे बी अगर लोग यूज नहीं करें, दे विल ईदर किल इट और दे विल बेसिकली स्टॉप प्रमोटिंग। एक टाइम तक आप प्रमोट करो नए प्रोडक्ट को, उसके बाद अगर वो भी आपके पास पैसा है, अगर पैसा नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे। या तो आपको फेसबुक पे, लिंक्डइन पे आपको कुछ क्रिएटिव ऐसे बनाने पड़ेंगे जो वायरल हो जाएं। आपको कुछ कंटेंट राइटिंग करनी पड़ेगी मीडियम पे जाके, गीक्स वीक्स पे जाके, अपनी दूसरी जगह जाके, कि जिससे आप अपने प्रोडक्ट को थोड़े ऑर्गेनिकली प्रमोट करो। अपने प्रोडक्ट पे जाके, अपने ब्लॉग पे जाके आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। पैसा नहीं है तो आपको ये सब भी करना पड़ेगा। Exactly. That's actually true. Like we see so many brands and we hear that businesses are going into the losses, but somewhere we understand that they have spent so much money in the marketing that now they are not able to manage the finances. So from that only I want to understand, like once our product is final, we have identified the gap, like how to solve a problem, our finances are sorted, we have taken care of the cash burning as well. So from there, how we have to move ahead, like finally how we are going to launch the product in the market. देखो, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो इट्स बेस्ट कि आप छोटे से छोटा मिनिमल प्रोडक्ट बना के कर लो। हम आज भी यही करते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी टीम है तो हम ये नहीं बोलते कि 6 महीने तक हम इसको बनाएंगे या 1 साल तक इसको बनाएंगे फिर लॉन्च करेंगे। आप एक MVP बना के लॉन्च कर दो और आप इसे लाइव कर दो और आप देखो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। देन रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इसे आइटरेटिवली इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि ये गलती लोग बहुत करते हैं कि 2-2 साल तक प्लानिंग करते रहते हैं। कई बार फंडिंग चेज करते रहते हैं कि मेरा इतना बड़ा आइडिया है, मैं ये बना के ही लॉन्च करूँगा, इससे का पहले लॉन्च नहीं करूँगा, पहले पैसे उठाऊँगा, ये करूँगा, और वो कभी लॉन्च भी नहीं कर पाते। 2 साल तक कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है उससे अच्छा कई बार। तो आप पहले एक मिनिमम प्रोजेक्ट बना के उसे लाइव कर दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गीक्स वीक्स एग्जांपल लें तो हमने सिंपली वर्डप्रेस यूज़ करके आर्टिकल पब्लिश करके ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। हमने ऐसे नहीं सोचा कि यार हम कुछ बड़ा बनाएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और उसे धीरे धीरे करके हम ग्रो करते रहे। एक बार आपका MVP लॉन्च हो गया, लोग यूज़ करने लगे, लोगों का थोड़ा फीडबैक लो कि लोग कितने कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर 4 लोगों का भी हेल्प हो रहा है, और कोई भी चीज़ जल्दी ग्रो नहीं करती। आप सोचो कि यार मैंने बहुत मेहनत करके मेरा तो बहुत सुपर आइडिया था, इस पर ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन वो आएगा धीरे धीरे। पहले 4 लोग यूज़ करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो से वापस आएंगे, फिर वो उनका डे टू डे लाइफ में टाइम सेव हो रहा होगा, उनका पैसा सेव हो रहा होगा, वो और लोगों को भी बताएंगे, फिर तो 4 से 8 होंगे, और वो धीरे धीरे करके ग्रो होता रहेगा। और आपका एक बार एक MVP बन गया, ग्रो हो गया, फिर तो आप उसके ऊपर कस्टमर को सुन के उसके ऊपर आइटरेट करते रहो। और हमारे केस में क्या हुआ था कि पहले हमने कंटेंट वाला अपना बिजनेस सॉर्ट करा, कि हमने लोगों से आर्टिकल लिखवाना स्टार्ट करा, और आर्टिकल से हमने कुछ रेवेन्यू करना स्टार्ट कर दिया, और वो हमने सॉर्ट कर लिया कि लिखवाने हमारा इतना खर्चा हो रहा है और हमारा रेवेन्यू ऐड का इतना आ रहा है जो खर्चे से ज़्यादा है। तो वी वर सॉर्टेड फ्रॉम दैट साइड। अब हमारे पास कुछ एक एडिशनल रेवेन्यू आने लग गया, तो उस एडिशनल रेवेन्यू को खर्च करके, अब एक तो तरीका हो सकता था मैं उस एडिशनल रेवेन्यू को अपने पास रख लूँ और अपना लाइफ स्टाइल बेटर कर लूँ, और दैट कुड हैव बीन अ वे। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो मैं बहुत सारे जब ब्लॉगिंग का टाइम था तो बहुत सारे ब्लॉगर्स बहुत पॉपुलर थे। जैसे एक ब्लॉगर थे लाभनो, अमित अग्रवाल करके, उनका बेसिकली उनको मैंने एक बार मैसेज भी करा था फेसबुक पे कि यार मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और अमित अग्रवाल इज़ लाइक कंसीडर्ड एज पायोनियर इन ब्लॉगिंग इन इंडिया। उन्होंने पहले टेक ब्लॉगिंग सबसे पहले स्टार्ट किया था, एंड वी ऑल व्हेन आई वाज इन कॉलेज वी ऑल यूज्ड टू फॉलो हिम। तो आई मैसेज हिम ऑल्सो, उनका मुझे रिप्लाई नहीं आया, बट मतलब मेरे लिए वो इंस्पिरेशन थे। लेकिन मुझे उनका स्टोरी अगर देखूँ तो उन्होंने ब्लॉगिंग से आगे उस पैसे को कहीं आगे इन्वेस्ट नहीं करा, मतलब ही स्टिल डज ब्लॉगिंग, उनका प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऐसे लाभनूल को ऐसे नहीं बनाया उन्होंने कि बहुत बड़ा आगे कुछ उस पैसे को यूज़ करके ही स्टेड इन आगरा एंड स्टिल डज द ब्लॉगिंग। ऑन द अदर हैंड व्हाट आई डिड कि मैंने वो पैसे से एक्चुअली जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया, आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल, आई स्टार्टेड एक्चुअली एडिंग प्रैक्टिस पोर्टल, और जो भी मेरे को मिनिमम चाहिए था अपने घर के लिए वो निकाल के आई इन्वेस्टेड ऑल द मनी बैक इनटू द प्रैक्टिस पोर्टल।
और प्रैक्टिस पोर्टल से धीरे धीरे करके हमने उस पैसे को इन्वेस्ट करके कोर्सेज करा। तो कोर्सेज बिजनेस आप जब हमने स्टार्ट करा तो बहुत लॉसेज में था, मतलब ऑब्वियसली आपको टीचर्स चाहिए, आपको पूरा प्लेटफॉर्म बनाना है, आपको पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको सब कुछ पूरा, इट्स ए कॉस्ट, इट्स ए लॉट ऑफ कॉस्ट, और सॉफ्टवेयर बनाने में कॉस्ट सबसे ज़्यादा जाती है। टेक का सैलरी बहुत ज़्यादा है, टेक का पूरा AWS का खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमने वो प्रोडक्ट बनाया, वो लॉसेज में चल रहा था, बट वी हैड an business which was generating revenue for us, so we were investing all that money into the courses. उसके बाद एक टाइम पे हम कोर्सेज को इन्वेस्ट करते करते ग्रो करते रहे, और कोर्सेज वाला बिजनेस हमारा जब प्रॉफिटेबल हो गया तो हमें लगा कि यार यहाँ भी हम ब्रेक इवन आ गए हैं, हम प्रॉफिटेबल आ गए हैं, सो वट एवर एक्स्ट्रा रेवेन्यू वी आर जनरेटिंग, लेट्स इन्वेस्ट इनटू अनदर बिजनेस। तो उसके बाद हमने अपना जॉब पोर्टल वाला बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट करा, तो आजकल हम अपने जॉब पोर्टल वाले बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। सो आई थिंक दिस इज हाउ आई थिंक यू कैन ग्रो द बिजनेस इन अ बूट स्ट्रैप वे, कि पहले आके आप एक MVP बनाओ, उसे प्रॉफिटेबल कर लो, उसमें भी आप आइट्रेशंस करके इंप्रूव करते रहो, मेक श्योर करते रहो कि ये प्रॉफिटेबल है। उसमें ऐसा मत करो कि मेरा अगर ऐड का रेवेन्यू 10 लाख रुपए महीने का आ रहा है तो मैं इतने कंटेंट राइटर हायर कर लूँगा कि मैं 20 लाख रुपए का अपना खर्चा कर लूँगा। तो आप इसे प्रॉफिटेबल रखो और इसे आइट्रेट करते रहो, इसे ऑप्टिमाइज करते रहो, फिर आपका जब ये प्रॉफिटेबल हो जाए, क्योंकि और बिजनेस में आप एक सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, वो भी एक प्रॉब्लम है। अब ऐड का रेवेन्यू काफ़ी कुछ गूगल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि गूगल सर्च से कितना ट्रैफिक भेज रहा है, गूगल का एड सेंड कर रहे हैं, एंड सडनली गूगल ब्लॉक्स यू और डीप्रायोरिटाइज यू, तो वो आपका थोड़ा डिपेंडेंसी है गूगल पे। तो वो डिपेंडेंसी अवॉइड करने के लिए हमेशा बिजनेस में रिस्क को अवॉइड करने के लिए, लेकिन स्टार्ट अनदर बिजनेस आफ्टर दैट। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दी कोर्सेज थिंग एंड द प्रैक्टिस थिंग, एंड वंस इट बिकेम प्रॉफिटेबल, पहला कोर्सेज में हमारा टारगेट था कि उसको प्रॉफिटेबल करना है। मैं ऐसे नहीं करना जैसे दूसरे कोर्सेज के कंपनी है कि बर्न करे जा रहे हैं, तो हमने वो नहीं करा, हमने उसको प्रॉफिटेबल लाने का कोशिश किया, एंड वी मेड इट प्रॉफिटेबल, एंड वंस इट बिकेम प्रॉफिटेबल नाउ वी आर इन्वेस्टिंग इनटू द जॉब पोर्टल एंड द स्टफ। Especially, I guess the market is also so much changing from last 1 decade if we see. So it's also very important to, I guess, evolve your products according to your audience as well. Like if we see, and we have seen examples of so many brands that has run out of the businesses just because they decided that we will stick to this one product and we will not grow. That's a mistake a lot of people do, कि आप बिल्कुल एक ही बिजनेस पे पूरा डिपेंडेंट हो और सडनली उस बिजनेस का, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता, और जनरली कहा जाता है कि 15-20 साल में हर बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाता है। कोई भी बिजनेस आप करो, दुनिया चेंज हो जाती है 15-20 साल में। अगर आप उस बिजनेस में या तो आप इनोवेशन करते रहो, या आप एक दूसरा बिजनेस लाइन भी स्टार्ट कर लो, वो सबसे अच्छा है। मतलब या तो कितने भी सुपर श्योर हो, लेकिन कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो हमेशा चलता रहेगा। यू नीड टू हैव अनदर इनकम वंस यू रीच सर्टेन लेवल कि आपका उससे प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है। So from there only, like we are talking about the audience, so how important is it to consider a customer feedback, especially in Indian market? Like we see most of the companies in India don't practice this, but what's your take on this? See, customer feedback is always very, very important, but it also doesn't mean that customer is always right. You need to listen to your team also, right? And you need to go by some gut feeling also sometimes, कि मेरा intuition कहता है यार कि ये चलेगा। So you need to maintain the right balance. आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल सोचो कि यार मैं तो जेफ बेजोस ने बोला अमेजोन में कि इट शुड बी कस्टमर फर्स्ट, तो अब मैं बिल्कुल कस्टमर का ही सुनूंगा, ये भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग द राइट बैलेंस, बट कस्टमर फीडबैक इज डेफिनेटली शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। आप उसे कंसीडर करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर आके जो बोल रहा है आप सब कुछ सुन रहे हो। मतलब आप उसमें भी देख सकते हो कि ज़्यादा किस चीज़ का फीडबैक आ रहा है। 100 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसमें से मे बी 30 लोग कुछ एक ही चीज़ बोल रहे होंगे, तो आप उसको प्रायोरिटाइज ऐसे कर सकते हो। एंड मेरे लिए कस्टमर फीडबैक हमेशा ऐसे काम करता है कि मैं बहुत सारे कॉलेज विजिट करता रहता हूँ, और मैं बहुत टाइम तक खुद से पढ़ाता भी था ऑफलाइन सेंटर में भी। जो हमारा नोएडा में हमने पहला ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया था, तो जब हमने ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया तो वहाँ बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते थे। तो मेरा इंटरेक्शन हमेशा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल से बहुत रहा है, और वो मैंने कोशिश हमेशा देखी है कि वो मेरा टच बना रहे। बेसिकली आई डोंट वांट टू ब्रेक इट, आई स्टिल डू अ लॉट ऑफ कॉलेज टॉक्स बिकॉज ऑफ दिस। मैं कॉलेजेस में जाता हूँ तो बच्चे अपने आप से बहुत सारा फीडबैक दे देते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में दे देते हैं कि गीक्सवर्क ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं कर रहा, और आप ऐसे क्यों कर रहे हो। कई बार लोग को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चे ने मेरे से पूछ लिया कि अब ChatGPT आ गया तो गीक्सवर्क का क्या होगा। तो मुझे उससे अपने आप बहुत सारा फीडबैक मिल जाता है कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, बेसिकली हाउ दे सी अस एंड व्हाट इज़ देयर फीडबैक। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इवैल्यूएट करते रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी कस्टमर ने आके कुछ बोला आपने अचानक से चेंज कर दिया। लिसन टू अ लॉट मोर पीपल, डोंट लिसन टू 4-5 पीपल,
इंक्रीज योर डेटा सेट। आप 100 लोगों को सुनो और 100 में से कुछ ज़्यादा लोग जो चीज़ बोल रहे हैं आप वो पिक करो। साथ में आप ऐसे भी मत करो कि अपनी टीम का बिल्कुल मत सुनो। अगर 100 लोगों में से 30 लोगों ने बोल दिया, आप टीम को जाके बोल दो नहीं हम तो यही करेंगे यार, ये सब छोड़ो। क्योंकि टीम के भी, प्रोडक्ट के भी, फाइनेंस के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, टीम के भी कुछ लिमिटेशन होते हैं। आप अगर सॉफ्टवेयर में कोई चेंज करना चाहते हो जो कस्टमर ने बोला है, लेकिन उस चेंज की वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें और ब्रेक हो जाती हैं या कुछ चीज़ें उसकी वजह से इम्पैक्ट हो जाती हैं, तो आप वो नहीं करना चाहोगे। यू नीड टू लिसन टू एवरीबडी and maintain the right balance. But customer feedback and talking to your customer constantly is very very important. Don't leave it to whatever level you reach. I still love to go to colleges. और हमारा जिस तरह का इंडस्ट्री, हमें एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे कस्टमर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो हमारे कंपनी में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम है, तो इफ आई डोंट टॉक टू द कस्टमर आई टॉक टू देम, बेसिकली आई गेट सम फीडबैक, तो दैट वर्क्स फॉर अस. That's great. In fact, like recently, Zomato has been a lot in the news, talking about like how they changed their dress code recently, and they said in very quote that due to customer feedback they have taken the decision, and when they get a backlash on social media, so I see a quote that we took a long call of 48 hours, and then again we took back the decision just for the customer feedback. So it has actually given a huge hype to the Zomato. राइट, आई मीन दैट वाज अ बिग न्यूज़ एंड आई थिंक वहाँ पे भी ये बोलूँगा, शायद उनको ऐसा होगा कि 100 लोगों में से मेजॉरिटी ने बोला होगा कि दिस इज रॉन्ग स्टेप. मतलब ऐसा नहीं होगा एक दो ने बोला और आपने या 4-5 लोगों ने सोशल मीडिया बोल दिया. आई थिंक उनको बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया होगा. राइट, लाइक एवरीबडी, लाइक इट्स यूज ऑल अक्रॉस द इंडिया, दैट प्लेटफॉर्म हैज बीन यूज्ड, सो definitely they must have done the A/B testing on a larger platform. So from there only, like in bootstrap section only, I want to ask like how a company, like we have sorted the finances and everything, so from there how one can grow more into it, like what are the financial mistakes one can avoid specifically, and what are the things they have to keep in mind while moving forward. देखो, बूट स्ट्रैप कंपनी में आपको हमेशा एक चीज़ तो इंश्योर करनी ही पड़ेगी कि आप प्रॉफिटेबल हो. आप मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबल हो, या ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल तो आपको होना ही पड़ेगा. मतलब वो सबसे ज़रूरी है. अब उसके अराउंड आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो. मतलब आपको प्रॉफिटेबल तो रहना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं. और वो एक अच्छा चैलेंज होता है, एक सर्वाइवल की अच्छी फाइट होती है, और वो सर्वाइवल करते करते, चैलेंज फेस करते करते आप ग्रो कर जाते हो. तो गीक्सोइक्स का ऐसे जर्नी रहा. इनफैक्ट मैं बहुत सारे और कंपनीज की जर्नी भी सुनता हूँ. मैं जोहो के जो फाउंडर हैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, और अभी मैंने उनका एक जो स्टॉक पे वीडियो देखा था, एक पॉडकास्ट था. ऐसे ही ईज माई ट्रिप करके एक कंपनी है, दिल्ली से ही है, और दे आर ऑल्सो बूट स्ट्रैप्ड, और उन्होंने बूट स्ट्रैप से सीधे IPO किया. सो दे आर रियली अ वेरी गुड एग्जाम्पल. तो मैं राज शमानी के चैनल पे उनके फाउंडर का एक पॉडकास्ट है, तो मैं वो देखा था थोड़े दिन पहले. तो उसमें द ईज माई ट्रिप फाउंडर वाज टेलिंग कि जब हम एक ब्रोकर की तरह काम कर रहे थे तो हम लोग कन्वीनियंस फ़ी चार्ज नहीं करते थे अपने कस्टमर से, जो मेक माई ट्रिप या और कंपनी करते हैं. तो देयर ओनली वे टू पिच इन द मार्केट कि हमारे यहाँ ये फीस नहीं होता है, जिसकी वजह से कस्टमर्स दूसरे बड़े ब्रांड जो बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं उनको छोड़ के ईज माई ट्रिप पे आएंगे. क्योंकि उन्होंने कुछ अलग करना था तो उन्होंने वो हटा दिया. आप हटा दिया तो उनको, और वो बूट स्ट्रैप भी है तो उनको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना है. सो देयर ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज कि जब आप एयरलाइन से टिकट बुक करते हो तो ब्रोकर को 6% कमीशन मिलता है. दैट कमीशन. तो उन्होंने पूरा अपना स्ट्रक्चर इस तरह से करा कि उनको पूरी कंपनी ऐसे चलानी है कि 6% अगर कमीशन मिल रहा है तो हमारा पर टिकट बर्न पे 5% का खर्चा होना चाहिए, सो दैट दे रिमेन प्रॉफिटेबल. तो आपको ऐसे अपने नंबर सेट करने होंगे अगर आप एक बूट स्ट्रैप कंपनी हो, कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा इतना ही लिमिटेड रेवेन्यू है. अब मैं कस्टमर से भी अननेसेसरी चार्ज करने लग जाऊंगा अपने ब्रांड का यूज़ करके, तो वो लॉन्ग टर्म में वर्क कभी नहीं करेगा. राइट, कस्टमर्स नो इन सम टाइम. आप चीट करके कोई स्कीम निकाल लो, ये निकाल लो, लेकिन कस्टमर्स को थोड़े दिनों में पता चल जाता है. तो आपको बिजनेस वैसे ही बनाना है कि कस्टमर शुड बी हैप्पी, यू शुड हैव अ डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट जो बड़े ब्रांड नहीं कर रहे हैं, जो फंडेड हैं, और साथ में आपको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है. तो मुझे वो ईज माई ट्रिप का स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा कि उनको पता था कि मेरा 6% का ये कट है. स्टेट्स वर वेरी क्लियर, मेरा यही रेवेन्यू है. अब मुझे अपनी टीम का खर्चा, अपना खर्चा ऐसे निकालना है कि मेरा 5% में खर्चा निकल जाए. तो वो चीज़ आप कर लो अगर बिजनेस में, तो अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे एग्जाम्पल देखो तो हमें पता होता है कि हमारा इतने ट्रैफिक पे ओवरऑल इतना रेवेन्यू आ जाता है, और इतना ऑन एवरेज आर्टिकल लिखवाने पे इतना हमारा खर्चा होता है हमारा. सो वी आर वेरी क्लियर कि हमें कितना पे करना है और कितने पे करने के बाद हम प्रॉफिटेबल रहेंगे. हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम ऑथर्स को बहुत ज़्यादा पे करने लग जाएं, क्योंकि हमारे खुद के रेवेन्यू लिमिटेड हैं, एड से खुद का लिमिटेड रेवेन्यू आता है. तो वो नंबर्स आप अपने क्लियर कर लो,
और फिर आपके नंबर्स और स्टेट्स एक बार बिल्कुल क्लियर हो गए कि इतने पे मैं प्रॉफिटेबल हूँ, फिर आप उसे कितना ही स्केल करो, फिर तो आपको मार्केटिंग की जरूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब क्योंकि अगर कस्टमर को आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, आपके Right. नंबर्स क्लियर हैं, तो कस्टमर तो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से। ईज माई ट्रिप का जब मैं स्टोरी सुना था तो वो बोल रहे थे कि हमने कभी मार्केटिंग में खर्च नहीं किया, वो अब थोड़ा बहुत करने लग गए हैं, पर स्टार्टिंग में तो मैंने भी कभी उनके ऐड नहीं देखे। तो वो लोग ने ऐसे ही ग्रो किया, अपना कस्टमर को भी फ़ायदा हुआ, उन्होंने अपने 5% में खर्चे कवर करके अपना ग्रो कर लिया। और जो का स्टोरी काफ़ी लंबा है, मतलब वो तो बहुत पुरानी कंपनी है, तो वो भी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। और जो का स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मतलब आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू जस्ट लिसन टू दिस स्टोरी। और हम भी एज ए कंपनी उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। और ऐसा होता है कि जब आप एक इंडियन कंपनी हो आप, और आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज को, सैस प्रोडक्ट वाली कंपनीज को पे कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक अमेज़ॉन को पे करते हैं, हम गूगल को पे करते हैं उनकी वर्क स्पेस के लिए, अमेज़ॉन को पे करते हैं AWS के लिए, और एक मंथली हमारा रिकरिंग कॉस्ट है तो जाता ही जाता है। देन देयर इज़ एन इंडियन कंपनी जो जिसका हम पीपल प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आई फील वेरी प्राउड कि यार एक इंडियन कंपनी भी है जिसको हम मंथली कुछ बिल्स पे कर रहे हैं। Right. तो आई थिंक ये कुछ कंपनीज हैं जिनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, इनको पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। Exactly, like startup culture is so much growing. So I was watching Shark Tank India. So there are 2-3 companies that I personally also love because of their product. Like if we talk about Snitch, or if we talk about Niche Hair or Karkinari, these all of these are bootstrap. But what they have did, they have identified the gap in the market and they have created a product around to that. Like they are solving a problem. So majorly, like in Zoho case also, like I was going through the marketing head interview some time back. So I one thing I find common in all these bootstrap company story, that a lot of them has focused mainly on the product, keeping the product so smart and so great, solving the problem, that it is growing itself and it's thriving and it's sustaining a lot. Right, and product is very important. So Right. if you are not spending, ultimately even the Keeping invested the product companies, they will strong. have to be profitable. I mean, Right. after certain years, maybe 10 years down the line, they will have to give returns to their investors also. Right. तो अगर आपने वो पैसा मार्केटिंग में बर्न नहीं करा है, और आपने उतना ज़्यादा इधर उधर बर्न नहीं करा, आपने प्रोडक्ट पे फोकस करा है, सो तो आपका प्रोडक्ट थोड़े दिनों में इतना एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि आप उस प्रोडक्ट से बहुत पैसा कर सकते हो। और आप अगर उसी पैसे को अपने टेक पे इन्वेस्ट ना करके, अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट ना करके, आप अगर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करे जा रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है बहुत मार्केटिंग कैंपेन चला के आप किसी सेलिब्रिटी को लाके इमीडिएटली थोड़ी सेल्स बूस्ट कर लोगे, Right. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको लाइफ टाइम Guaranteed. वैल्यू मिलेगी, It's लाइफ टाइम good. आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। Like Zara, it's a very famous case study that they only spend 0.3% on the marketing because they have created that much of channel and supply chain. Same with the Naturals ice cream, like they don't do marketing at all. So that is definitely right that we have to focus, one has to focus on a product to create a sustainable business in long run. We have covered all the roadmaps of how to start a business, how to keep it going. So what are the key mistakes that one generally makes and they can avoid? Like from your own personal experience, what are the mistakes you would like to highlight here that one can avoid? So the most important thing is finances. Okay. You should be very clear about finances, और finances को आप बहुत अच्छे से मैनेज करो। पैसा कहीं भी एक्स्ट्रा बर्न मत करो। मतलब मैंने भी कई बार मिस्टेक्स की हैं कि कई जगह मैंने पैसा खर्च कर दिया और फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार मैंने गलत खर्च कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। Think तो twice. थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग मनी, स्पेशली व्हेन यू आर बूटस्ट्रैप्ड, राइट? तो पैसा आपका बहुत मेहनत Like से even आता in है। case of funding as well, it फंडिंग goes एज वेल, into the फंडिंग एज losses नहीं करना as चाहिए, well. करना है तो टेक और Right. प्रोडक्ट पे करो, मार्केटिंग Yeah. में अननेसेसरी मत करो। Okay. और अगर आप थोड़ा पैसा सबसे इम्पोर्टेंट तो फाइनेंस ही है, उसके बाद सबसे थोड़ा गलती करते हैं लोग, कैरीड अवे हो जाते हैं। मतलब अगर आप एक थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हो बिजनेस में, तो ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा कोई नहीं है कि आप बहुत सुपर पावर हो, आपने बहुत कुछ, लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब हालांकि आपने बहुत सारे डिसीजन अच्छे लिए होंगे, कई बार कोई दूसरा पर्सन होता तो उतने अच्छे डिसीजन लेके सक्सेसफुल नहीं हो पाता, लेकिन लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लेने लग जाओ, इतने कैरीड अवे मत हो जाओ कि आप किसी को समझो नहीं। Right. दिस इज अगेन अ मिस्टेक कि आपने मान लो 5 करोड़ के रेवेन्यू की कंपनी बना ली, तो कई बार 5 करोड़ 10 करोड़ की कंपनी भी बंद हो जाती है अगले दिन से, अगर आप बहुत कैरीड अवे हो जाते हो या अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लग जाते हो। Right. तो यू नीड टू लिसन टू अदर्स, कीप लिसनिंग टू अदर्स, कीप लिसनिंग टू योर टीम, कीप लिसनिंग टू द कस्टमर, वो बहुत ज़रूरी है। एंड बी डाउन टू अर्थ, मतलब आप वो Be बने रहो, humble. बी Right. हम्बल एंड कीप लिसनिंग टू एवरीबडी, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे मत सोचने लग जाओ कि यार मैं इतना अचीव कर लिया, मैं यहाँ तक ले आया, तो आई हैव सम सुपर पावर्स, मैं यहाँ से यहाँ भी ले जाऊँगा। Right. वो मतलब आप ले जाओगे, बट
be with your team, be with your family, be with your customers, and try to maintain that. Right. Thank you so much, sir, for today's video. I hope our audience has some valuable insights and key takeaways from today's video. And guys, if you have liked the video, please do hit the subscribe button, follow us, and stay tuned for more upcoming videos. Thank you.